Yes, Alisa. So Yes. there were some important formulas हैं जो कि मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ. And first one that was that the electric potential at any point V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r into q by r. है ना? Yes. This Sir. was the first one point. And the second point is that this dV upon dr was equal to minus E. Huh? Yes, sir. Now what is dV upon dr? dV upon dr is called the potential gradient. ठीक है, ये भी आपको बताया था. Yes, sir. ठीक है, ये भी हो गया. And potential this potential gradient is equal to the negative of intensity of electric field. ये कैसे आया था, ये आपको डेरिवेशन पता है? Yes, sir. ठीक है ना, इसको हमने क्या किया था. So this is a constant value. V is, I am just taking it as a constant K. So ये हो गया Q upon R. So इसको हम लिख सकते हैं K Q R minus 1. ठीक है, जिसको ऊपर ले लिया. So Yes, sir. and then what I have done, now these two are constant. So dV upon dr करेंगे तो क्या हो जाएगा, K and Q are constant. और ये r minus 1 का जो हम when I will be this differentiating it with respect to this means the value of this means when I will be differentiating it with respect to r, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 r -1 है ना, यही होगा. Yes, sir. ठीक है ना. ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू अगेन डिराइव दिस इक्वेशन. मैं आपको फिर से एक बार करने की कोशिश. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू के क्यू -1 अपॉन आर स्क्वायर, है ना. Yes, sir. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया. एंड व्हाट इज दिस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज ई, E है ना. minus. One, हाँ. Yes, sir. That is because this K is what? K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r q upon r square. So this is the value of the intensity of electric field. है ना? Yes, sir. So this is equal to minus E. So in this way we have derived that the potential gradient, that is dV upon dr, is equal to minus E. So this was the another important equation. दो, एक तो ये हो गया, this was the first one, ये second one हो गया. अच्छा, next. Because today now we will be doing a couple of numericals now. जो भी आपको Yes. पढ़ाया है मैंने, उसके basis पे we will now try to do a couple of numericals so that you can have an idea of how to apply these formulas. इसका आपको एप्लीकेशन में आना चाहिए, तो वो अभी हम करेंगे. तो अभी जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सेकेंड थिंग, और क्या हमने बताया था आपको इसके अलावा, work done was equal to Q into V, ये भी बताया था. minus Q integrate E into dr. अच्छा, चलो वहां से स्टार्ट करते हैं, पूरा करते हैं. अभी ये कोई पॉजिटिव चार्ज है जैसे हमने बात किया था, तो इसकी एक फील्ड बनेगी बाहर की तरफ, है ना. और यहाँ पे ये आपको कोई चार्ज है Q, और हमने एक कोई छोटा सा चार्ज है, लेट अस से छोटा चार्ज है, लेट अस से Q, इसको हम लोग यहाँ पे लेके आए थे. ठीक है, इसकी फील्ड में इसका छोड़िए छोटा चुकी चार्ज है, दिस इज अ स्मॉल चार्ज, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज. सो और उस केस में बिकॉज ये आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे क्या लग रहा था, बाहर की तरफ, है ना. और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम इस चार्ज को यहां से इधर लेके आए, तो द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना. सो वी हैड अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स which should be more than this Fe. ये भी बताया था मैंने, Yes, sir. है ना. तो ये भी हमने बताया था कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, इसकी वैल्यू
एफ ई से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी what will happen what will happen, this charge will start moving towards this charge q only when this Yes. external force is more than this electrostatic force. And हमने in physics, because we have to do the calculations also, तो हम ये मानते हैं कि भैया अगर when this F external. हाँ. हाँ, in that case this charge will start moving towards this bigger charge and it will come in the this electric field region of this bigger charge. तो वैसे तो नॉर्मली क्या है, अगर दोनों बराबर होंगे तो नहीं आएंगे, अगर दोनों बराबर रहेंगे तो द चार्ज विल नॉट मूव, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी आर टेकिंग that this external force should be equal to Fe. Now here the displacement is having in this direction, the charge is moving in this direction, force is acting in this direction, तो work done क्या होगा, what Work done will be negative. negative, so work done will be equal to, now work done is equal to what, work done is equal to force into displacement. Yes, sir. अच्छा, फोर्स का एक और फॉर्मूला है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, Q इंटू ई, Yes, sir. ये भी एक फॉर्मूला है. सो यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा था नेगेटिव, Yes, sir. ठीक है. आपको कहीं जाना तो नहीं, somebody is calling you? No, sir. अच्छा, सो तो ये आपका वर्क डन नेगेटिव है, और ये कहाँ से हम लेके आ रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम ए वेरी वेरी फार प्लेस जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी. तो हम इसको वर्क डन का होगा फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके, ये कोई पॉइंट पी है, चलो ये पॉइंट पी ले लिया, तो यहाँ पे पॉइंट पी, एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, यही था, Yes. ये लिखवाया था शायद मैंने आपको. Yes, एंड sir. दिस वाज इक्वल टू व्हाट, इसको मैं से हटा दे, हाँ, दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, Integral माइनस, F E dr. हाँ ये एफ ई हो जाएगा, ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, Yes, sir. ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छी, ये आपको याद रहेगा ना, तो आपको बहुत आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में. एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब हम एफ ई की जगह पे लगा देंगे क्यू ई, dr. तो यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू ई डी आर dr. इन्फिनिटी से लेके पी, ठीक है. Yes, sir. अच्छा, और हमारा अब आता है सो नाउ दिस, ये जो Q है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, चार्ज के में कांस्टेंट है, तो हम इसको कैसे लिख, हाँ तो ये हम बाहर ले लेंगे माइनस Q, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी से P E डी आर, ठीक है. Yes, sir. सो नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को हम यहाँ ले लेते हैं अंदर. Yes, sir. नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज माइनस ई डी आर, क्या है ये देखो, ये dv. डी वी, तो ये हो जाएगा क्यू डी वी, ठीक है, Yes, sir. हो गया. अच्छा, अब देखो ध्यान से, हमने ये भी कंसीडर किया था कि दिस चार्ज which we have brought from infinity was having a potential of 0, इसका पोटेंशियल वहां पर 0 है, Yes, sir. ठीक है. एट इन्फिनिटी इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है, और अगर इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे है v, let us consider that the potential of this charge at this point P is V, capital V. तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, Q, देख इधर देखो आप, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो Q कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी V फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, है ना, ये Q बाहर हो जाएगा, dv मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या है भाई, q हम अगर बाहर ले लिया, सो व्हाट इज दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, V.
यहाँ पे हाँ कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 dv, तो 1 dv का क्या हो जाएगा, Yes, sir. v हो जाएगा, v हो जाएगा, और v कहाँ, फ्रॉम इंफिनिटी टू p, ठीक है। Yes, sir. नाउ Yes, sir. नाउ इसको भी लिखते हैं आगे, q the value of the potential electric potential at this point p is v, जो हमने माना है v, and the potential at this point at infinity कितना था, potential क्या है इसका, when this the potential of this charge when it was at infinity that was equal to 0, Yes, sir. वो हमने माना है, we have already assumed that the potential of that charge at infinity is 0. It might not be 0, जरूरी नहीं है 0, but हमने assume किया है. So there are many things in physics which we are assuming. Physics में बहुत सारी चीजें हमको assume करनी पड़ती हैं, ठीक है, so that we can just come to some conclusion, ठीक है। So ये अच्छा पोटेंशियल हमने इस पॉइंट पे कितना माना है इसका, जब ये चार्ज हम यहाँ पे P पे लाए हैं, इसका पोटेंशियल मैंने लिया है V, यहाँ पर the potential of this point of this charge at this point P in the electric field region of this charge Q is Yes. V. अगर V है V. तो V हो जाएगा at the point P minus the potential at infinity, वो कितना होगा 0, Yes, sir. वो हमने माना है, तो ये 0 हो जाएगा, which is equal to QV. आ गया। Yes, sir. तो जो कितनी लंबी इक्वेशन बन गई आपकी, कितनी सारी, फाइनली हमारे पास में आ गया वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Yes, sir. ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बताया था, द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो इक्वल टू E इंटू डी, डी या आर बोल सकते हो आप किसी भी पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट P पर पोटेंशियल V है, Yes, sir. ठीक है, और मान लो इस चार्ज से, ये जो चार्ज है ना बड़ा वाला चार्ज, इसकी बीच इन दोनों चार्ज की बीच की जो दूरी है वो है R, ठीक है। Yes, sir. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर एट द पॉइंट P, कितना होगा, the electric potential at this point P is V, capital V, and the distance between this charge Q, small q, and this charge capital Q is R, small r. Then what will be the value of the electric field intensity at this point P? कितना होगा? You have to use this formula, V is equal to E into T. ये आपको याद है, नहीं याद है? नहीं याद है? चलो Yes, sir. देखो देखो, अभी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ ये ऐसे कैसे फॉर्मूला है। तो V इज बेसिकली इक्वल टू E इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। V इज इक्वल टू E इंटू टी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी कैसे आया ये भी मैं आपको अभी 2 मिनट में डिराइव करके बता देता हूँ। सो ये भी आपको हो गया नाउ। अच्छा ये जो V है ना, यहाँ पे जो पोटेंशियल है इस पॉइंट P पे, देखो ध्यान से सुनो अभी अली साहब, अब यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो चार्ज Q आया, हम जो इंफिनिटी से लेके आए हैं, तो वी हैव प्लेस्ड दिस चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ दिस कैपिटल Q चार्ज। Yes, sir. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जो हम बात कर रहे हैं, जो हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, दैट पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q, Yes, sir. ठीक है, पोटेंशियल इस एंड हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल Q इस पॉइंट पे। और ये चार्ज हम ये Yes. जो स्मॉल Q है ना,
ये बहुत ही छोटा सा चार्ज है जो कि हम बहुत दूर से लेके आए फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो V की हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस चार्ज कैपिटल Q, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस चार्ज को लेके आए हैं। Yes, sir. यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस। यहाँ पे जरा से भी आपने अगर आपको दिक्कत हुई या नहीं समझ में आ रहा है, यू शुड टेल मी, बिकॉज यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये यहाँ पर ये जो V है किसकी वजह से V है, E की वैल्यू किसकी वजह से है, तो E की वैल्यू इस चार्ज की वजह से है कैपिटल Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है इस पॉइंट P पे जहां पर हम इस चार्ज को लेके आए इंफिनिटी से, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब आते हैं, आपको ये वाला फॉर्मूला बता देता हूँ, B इज इक्वल टू E इंटू आर। ये कैसे आया, आप जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, इसको आप रिवीजन करो। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। Yes, sir. समझ में आया? अगर आपने रिवीजन नहीं किया आप भूल जाओगे। अगर आपने क्वेश्चंस को नहीं किया, आपने रिवीजन नहीं किया, फिर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, ये जितना भी पढ़ाया हुआ है सब बेकार हो जाएगा, है ना? Yes, sir. ध्यान से, ये और फिजिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग दी कॉन्सेप्ट्स। रटना कुछ नहीं है, रटने की कोशिश की Yes. आपके नंबर 0 हो जाएंगे। 100 में से आपको 2-4 नंबर 10% आएंगे। कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने तो आप कुछ नहीं है फिजिक्स में। अब आते हैं, देखो यहाँ पर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेट अस से ये कोई चार्ज है Q, ठीक है, Yes, sir. इसकी इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, अब किसी एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे पॉइंट मान लो कोई है P, तो इस पॉइंट के ऊपर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q, क्या होगा, Q अपॉन The R square. R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट P एंड दिस चार्ज। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है बिकॉज यहाँ पे कुछ है नहीं। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पर the magnitude of the electric field or you can say the intensity of electric field at this point P due to this charge Q is equal to this। जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे E की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओगे वैसे वैसे E की वैल्यू कम होती जाएगी। Similarly, the value of the electric potential, the value of the electric potential because of this charge Q, because of this charge Q at this point P will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r into Q by R। ये होता है, this is the formula for the electric potential at this point P due to this charge capital Q। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ये इलेक्ट्रिक, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब देखो यहीं से आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। देखो कैसे आता है अभी, आपने ये लिख लिया था जो मैंने अभी नीचे लिखा था, जो मैंने अभी रब कर दिया। Sir, I took a screenshot. स्क्रीनशॉट मत लिया करो आप, जो भी है ट्राई टू राइट इट डाउन, हाथ से लिखो तभी आपको याद होगा। स्क्रीनशॉट लोगे, Yes. हाँ, फ्यूचर में याद रखो। नेवर, अभी आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया है राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, बिकॉज जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे, जब तक रिवीजन नहीं करोगे, फिजिक्स में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, अगर आपने रिवीजन नहीं किया आप भूल जाओगे। Yes, sir. और दूसरा चीज एक और बताया आपको मैंने, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 का इज लिंक टू चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 इज लिंक टू 3, लाइक दैट। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी अगर है आपको, तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे भी, या फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, रिविजन इज अ मस्ट। एंड एट द सेम टाइम जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, उसको, अच्छा इसके अलावा और कौन सी बुक है आपके पास में एनसीईआरटी के अलावा?
Which book do you have apart from this NCRT? Sir, exam idea. Sorry? Exam idea. फिर से बोलो, आई एम नॉट